Okay, let's begin with a word of prayer. आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। Heavenly Father, we thank you for this time. परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Father, we pray that you will help us understand your word. हम प्रार्थना करते हैं कि हमें आपके वचन को समझने में सहायता करें। Father, we pray that we will be able to apply the truth of your word in our lives. आपके वचन के सच्चाई को हमारे जीवन में इस्तेमाल करने में सहायता कीजिए। Father, we pray that if there are confusions and anxieties, that Lord, you would remove that from our hearts. हमारे जीवन में अगर कोई भी, हमारे हृदय में कोई भी संकोच है, उसको आप हटा दें करके प्रार्थना करते हैं। Father, we pray that you will help us, O God, align ourselves to your direction. प्रभु, आपके राह दिखाए हुए आपके मार्गदर्शन में हमें आप सहायता मदद करें। Let your word come clearly to us. आपका वचन स्पष्ट रूप से हमारे पास आने पाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Amen. Praise God. So today we are going to continue with another book. और आज एक नया किताब के साथ शुरू करेंगे। This is Receiving God's Guidance. It's an APC publication. एपीसी के द्वारा पब्लिश किया हुआ परमेश्वर का मार्गदर्शन को प्राप्त करना। So in the first study of the book, Fulfilling God's Purpose, और पहला किताब जो हमने पढ़ा था, परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करना, we kept saying that we have to understand what God is leading us to do. और हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें किस बात की ओर अगुवाई कर रहा है। So in this particular book, we have more details about how God is speaking to us. और इस किताब में हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे स्पष्ट रूप से कैसे बातचीत कर रहा है। So we will look at a couple of ways in which God speaks normally to all of us. और कुछ सूचियों को देखेंगे जिसके द्वारा हम जान पाएंगे कि परमेश्वर हमसे किस किस रीति से बातचीत करता है। So we will begin with chapter 3. तीसरे अध्याय के साथ हम शुरू करेंगे। So all of us can turn to chapter 3. 29वां पेज नंबर, चैप्टर 3, तीसरा अध्याय, 29वां पेज नंबर 29। Yeah, it's page 25. इंग्लिश 25, हिंदी 29। That book is done. We have done the highlights of that book. So we are going to the next book. Which one? Huh. So अब ये नया किताब। yeah. So in this course, we are going to look at 3 books. हम जो ये कोर्स है उसमें 3 किताब को देखेंगे। We have completed one. We are doing the second one, and tomorrow we'll go to the third one. हमने एक खत्म कर दिया है। आज ये दूसरा वाला किताब हम देखेंगे और कल जो है तीसरे किताब की ओर जाएंगे। So the first way in which God speaks to us is through the word of God. और पहला जो हमसे बातचीत करता है प्रभु, वो है परमेश्वर का वचन। Psalm 119 and verse 105. भजन संगीता 119 उसका 105। It says, your word is a lamp to my feet and a light to my path. परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। So when we want to walk, in, let's say, in life, we want to take the next step. ऐसा सोचे कि हमें हमारे जीवन का अगला पड़ाव लेना है। We need light. हमें रोशनी की जरूरत है। In the evenings, I know that in places where we don't find light, we use our mobile phones, put the torch so that we can see the next step. और शाम के समय जब अंधेरा शुरू हो जाता है तो जब दिखता नहीं है, हम लोग ये कोशिश करते हैं राह कौन से रास्ते चल रहे हैं देखने के लिए हम लोग मोबाइल का जो लाइट होता है उसको ऑन करते हैं।
And in the same way, a little bit of light needs to be shed on our path for us to move forward. हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रकार का, किसी भी प्रकार का एक रोशनी की जरूरत पड़ता है. If there's a lot of light, that's wonderful. अगर वहां पे अधिक से अधिक रोशनी है वो बढ़िया है, But at least a little bit of light so that we can see the next step. और लेकिन थोड़ा सा तो रोशनी की जरूरत होता है ताकि हम आगे का रास्ता देख सकें. Now, what God does is God speaks to us through His word, which is the light in our lives. और परमेश्वर क्या करता है, उसके वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है, जो वो वचन जो हमारे लिए, हमारे रास्ते के लिए दीपक बन जाता है. That is why the psalmist said that the word of God is a lamp to my feet and light to my path. इसीलिए भजन संगीतकार ने कहा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है. So when we have the word of God, it gives us direction. और परमेश्वर का वचन जब हमारे साथ होता है वो हमारा मार्गदर्शन करता है. Psalm 119 and verse 130, भजन संगीता 119 उसका 130 में कहा गया है, it says that the entrance of your word gives light. तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है, And that it also gives understanding. और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं. Okay, so the word of God, when we receive the word of God, we may have darkness in our minds or confusion. वचन नहीं होने से हमारे दिमाग में जो है संकोच और अंधकार रहता है. But scripture says that the word brings light. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, वचन जो है हमारे जीवन में प्रकाश लेके आता है. And the word brings understanding. और परमेश्वर का वचन हमें समझ लेकर आता है. So the word of God has a role or a function. और परमेश्वर का वचन का हमारे जीवन में एक 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 एक, एक प्रमुख स्थान है. We saw yesterday in 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17. हमने कल दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय उसके 16 में हमने देखा था That the word of God is inspiration of God. कि परमेश्वर का वचन जो है उसके मुंह से निकले हुए वाणियां हैं. No, there are many books we can read. हम कई किताबें पढ़ सकते हैं And many books are encouraging. और कई किताबें हमें उत्तेजना देने वाला नहीं तो हमें मजबूत करने वाला किताबें होते हैं. But the word of God is the inspiration of God. लेकिन परमेश्वर का वचन जो है हमें और मजबूत नहीं तो हमें और थोड़ा प्रेरित करता है. The words of man are encouraging. मनुष्य का जो वाणियां होते हैं, शब्द होते हैं, हमें प्रेरित करते हैं. But the words which are written in the Bible are not the words of man. लेकिन परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ एक एक वचन है वो मनुष्य का वचन नहीं लेकिन परमेश्वर का वचन है. That's why we call it inspiration of God. इसीलिए हम कहते हैं परमेश्वर के द्वारा कहा गया वचन. It is true that human beings wrote it. ये सच्ची बात है कि मनुष्यों के द्वारा वो लिखा गया था. But it is from God. लेकिन वो वचन जो है परमेश्वर के वास से उत्पन्न हुआ है. So that is the difference between the Bible and the other books that we read. तो यही है परमेश्वर के वचन को पढ़ने में और अन्य किताबों को पढ़ने का अंतर. So when we buy any product, हम किसी भी वस्तु को जब हम खरीदते हैं, let's say we are buying a mixie grinder. हम एक उदाहरण ले लें कि मिक्सी को हम खरीद रहे हैं. It usually comes with a small book, isn't it? उसमें एक छोटी सी किताब हमें मिलता है. Or let's say we are buying a TV set, television. और ऐसा सोचे कि हम एक टेलीविजन खरीद रहे हैं. Even that comes with a book, like a guide book. और उसमें एक मार्गदर्शन देने वाली एक किताब हमारे को मिलता है. So the person who made it or the people who made it gave us
good instructions about how to run it. और जिस लोगों ने इस चीजों को बनाया है, ये किताब हमें दिया जाता है ताकि हम समझ सके कि सही रीति से इसको कैसे चलाएं, इस्तेमाल करें। They have given us instructions about how to run it without damage. और हमें उसमें एक एक मार्गदर्शन मिलता है ये दिखाने के लिए कि हम उसको सही रीति से कैसे इस्तेमाल करें। So things like don't put water on it, or don't let it fall down. So there are some instructions to protect it. और उसमें लिखे होते हैं कि उसमें पानी ना गिरे या नीचे गिरना नहीं चाहिए। So when we follow the instructions, we can use that appliance productively. और जब हम उस निर्देश को हम पालन करते हैं तो उस सामग्री को सही रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं। In the same way, when it comes to our life, इसी प्रकार हमारे जीवन के बारे में जब आता है, we have to follow the instructions of God from the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके मार्गदर्शनों को मानना बहुत जरूरी है। That's what 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17 tell us. वही है दूसरा तिमुथियुस 3 का 16 और 17 में लिखा हुआ है। I'll read that passage for us. It says, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. कृपया पढ़ें। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। Amen. Amen. So, you see, there are many works or tasks that the word of God does. और ये आप समझे कि परमेश्वर का वचन जो है कई चीजों को, कई कार्यों को करता है। It helps us understand doctrine or the truth about God. हमें परमेश्वर के शास्त्र के बारे में जानने में परमेश्वर का वचन हमें सहायता करता है। In the morning we are studying Christology. हमने सुबह के समय मसीह शास्त्र पढ़ा, That is doctrine. वो है शास्त्र। And we know what the scripture says, so that our belief is based on strong foundation. और हम जान सकते हैं इन शास्त्रों को पढ़ने के कारण कि हमारा विश्वास जो है कहाँ पर सिद्ध खड़ा हुआ है। We may also receive reproof and correction from God's word. हमारे परमेश्वर के वचन को पढ़ने से हमारे को शिक्षा और ज्ञान भी मिलता है। So reproof and correction simply means that the word of God will convict us. उसका मतलब ये है समझ और सुधार हमें वचन में मिलने से उसका मतलब है कि हमें और ज्यादा परमेश्वर के वचन को समझ मिलता है। For example, if we read a passage from Proverbs where it speaks to, it talks about the ants. अगर नीति वचन में हम देखें जैसे उदाहरण के रीति से जहां पे चींटियों के बारे में उदाहरण दिया गया है, it says you learn from the ant, you sluggard. उसमें कहा है आलसी तुम चींटियों के पास जाकर शिक्षा लो। You know how the ants are so smart that in the season of plenty they collect so that they have in the season of famine. और चींटियों का स्वभाव ये है कि जब अधिक मात्रा में धान्य रहता है तो वो वहां जाके उसको ले लेते हैं ताकि जब धान्य की कमी हो जाती है उनके पास अधिक मात्रा में रहे। So when we read something like that, we get convicted by God's word. और जब हमें ऐसी जरूरतें पड़ती है तो हमारे को परमेश्वर का वचन सहायता करता है। And the word of God, you know, maybe I read that and immediately I feel, oh, God is telling me to become hardworking. और कभी कभी हम उस ऐसे वचनों को पढ़ते हैं और हमें समझ मिलता है कि परमेश्वर ये चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करूं। And you know, there are other scriptures that say that we have to be truthful,
we must not steal. So when we read all that, it pushes us to change ourselves. और जब हम पढ़ते हैं कि हमें चोरी नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है, ये सब चीजें जो है, ये वचन जब पढ़ते हैं हम, तो वो हमें आगे की ओर बढ़ाने के लिए एक सहायक या मदद बन जाता So है। that's what Paul is saying. When you read the word will work in your heart and you keep changing. और ये कहा गया है कि पौलुस कहता है कि जब आप परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक पढ़ोगे, वो आपके जीवन को बदलाहट में लेके आता है। And there is instruction in God's word. और परमेश्वर के वचन में हमारे लिए जो है सुझाव है, For all the areas of our lives. और हमारे जीवन के सारे क्षेत्र के लिए उसमें सुझाव है। So as a young person, how one should live their lives, एक जवान के माफिक कैसे जीना है, or how should a married couple build their home, और एक शादीशुदा परिवार जो है उनका घर किस प्रकार से तैयार करना है, how should some young parents take care of their children, और जवान जो माता पिता हैं उनके बच्चों को किस प्रकार से ध्यान देना है, how to do business in the right way. और व्यापार करते हैं तो किस सही मायने से व्यापार करना है। So there are many instructions. उसमें कई प्रकार के हमारे लिए मार्गदर्शन है। So when I need guidance from God, first I should go to the Word of God. और हमारे जीवन में जब एक मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, तो हमें पहला ये कार्य करना है कि हमें परमेश्वर के पास जाना है। So it simply looks like this. I'll give you an example. मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। Let's imagine a young couple who have just had a baby or a child. और हम ऐसा सोचें कि जवान जो पति पत्नी है, जिनके घर में अभी एक नया संतान पैदा हुआ है। So when they want to learn how to bring up the child in the ways of the Lord, the scriptures have a lot to tell them. और वो लोग जब चाहते हैं कि इस जो शिशु पैदा हुआ है उसको किस प्रकार से वचन में बढ़ाकर लेके आ सके, उसके विषय में परमेश्वर के वचन में बहुत अधिक लिखा हुआ है। And there are many promises of God as far as generations are concerned. और पीढ़ियों के बारे में कई प्रकार के वाचाएं, प्रतिज्ञाएं प्रभु के वचन में हैं। So maybe the couple can pull out verses from the Bible. हो सकता है कि वो जवान पति पत्नी जो है वो इस परमेश्वर के वचन में से ले सकते हैं, And they can develop their understanding as parents from the Word of God. और माता पिता के हिसाब से वो इस परमेश्वर के वचन में से वो लोग सीख ले सकते हैं। Because the Bible says, instruct a child in the way he should go and he will never depart from it. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक बालक को उसके चलने के राह को समझाएं, वो वयस्क होने के उपरांत भी उसे भूलता नहीं है। And God's promise says that the word that I have put in your mouth, it will be in the mouth of the coming generations. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वाक्य, जो वचन मैंने तुम्हारे मुंह में डाला है वो आने वाली पीढ़ियों में भी सुना जाएगा। The anointing that I have poured upon you, that will be poured upon your coming generations. जो अभिषेक को मैंने तुम्हारे ऊपर उंडेला है वो तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के ऊपर भी जारी रहेगा। So this is in Isaiah 59. और वो इज़ाया की किताब 59 में लिखा हुआ है। In Isaiah 54, there's a promise that says that your children will be taught of the Lord and great shall be their peace. इज़ाया 54 में लिखा है कि परमेश्वर में जो है परमेश्वर के वचन में अधिक से अधिक आपको पढ़ाया जाएगा या सिखाया जाएगा और वो पीढ़ी दर पीढ़ी होगा। So when we see scriptures like this about children and parenting, और हम जब ऐसे वचनों को देखते हैं परिवार के लिए और माता पिताओं को किस प्रकार से बच्चों को देखना है उसके विषय में, it already guides them on how to do this well. और उसे वो वचन जो है सही मायने से उनको मार्गदर्शन देता है कि वो लोग कैसे अपने पीढ़ी और अपने संतानों को लेकर चलें। So this is the point that we are trying to make.
और यही है जो आप लोगों के बीच में मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। Whichever stage of life you are in, search the scriptures regarding that stage. और कोई भी क्षेत्र होने दो, कोई भी श्रेणी में होने दो आप अपने जीवन के, ये परमेश्वर का वचन जो है आपको मार्गदर्शन करेगा। So if you are a student, अगर आप एक शिक्षा लेने वाले व्यक्ति हैं, then scriptures tell us if you lack wisdom, ask God, God will give you. Don't doubt in your heart. और परमेश्वर के वचन में लिखा है अगर तुम्हें बुद्धि और ज्ञान की कमी है और उससे मांग लें जो तुम्हें अधिक से अधिक देगा। Okay? Or the hand of the diligent makes rich. God blesses the hand of the diligent. और परमेश्वर का वचन कहता है कि नम्र व्यक्ति का हाथ जो है, परिश्रमी का हाथ जो है, उसे धनी बनाता है। So these are the scriptures which may be relevant for us when we are in a stage of studying or working. और ये वचने हैं, जो वचन है जो हमें हमारे पढ़ाई के समय पे और अधिक से अधिक अच्छा बना के लेके आता है। So when we develop this habit of searching the scriptures for that stage of life, there's already a lot of guidance available. और जिस श्रेणी में हम हैं अपने जीवन के, उसके विषय में जब हम परमेश्वर के वचन में से ज्यादा खोज करते हैं तो वो हमारे लिए उपलब्ध होता है। Okay, are you all understanding? क्या अभी तक समझ में आ रहा है? So when we already know the scriptures, sometimes we don't even have to ask or even pray and say, God, what should I do? और जब हमें वचन में से अच्छे से ज्ञान है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ता या प्रार्थना करके प्रभु मैं क्या करूं, आगे मैं क्या करूं करके पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ता है। Okay, we can on the basis of the word of God which we know, we can make a decision. और परमेश्वर का वचन जो मुझे पहले से ही मालूम है, उसके माध्यम से मैं एक निर्णय को ले सकता हूं। So it is as simple as that. ये इतना सरल रीति से समझाने की कोशिश है। So the first thing is to have like a treasure or a reservoir of God's word in our heart. और इसका पहला रीति से हम ऐसा समझ सकते हैं कि परमेश्वर के वचन को एक खजाने के समान हमारे हृदय में रखना जरूरी है। So for example, you know, a lot of young people here, यहाँ एक उदाहरण अगर लेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जवान लड़के और लड़कियां हैं। so what does the Bible say about marrying an unbeliever? और परमेश्वर का वचन एक परमेश्वर को ना जानने वाले व्यक्ति के साथ शादी मनाने के बारे में क्या कहता है? What does it say? Can you should you not do that? और क्या परमेश्वर का वचन कहता है क्या आप मसीह को ना जानने वाले व्यक्ति के साथ शादी बना सकते हैं या नहीं? How do you know? किस प्रकार से आपको मालूम चलता? नहीं। Did God talk to you? क्या आपके साथ परमेश्वर ने बातचीत किया? Did you hear his voice? क्या आपने परमेश्वर की वाणी को सुना? When did he tell you? कब आपसे बोला? You already know the word. क्योंकि आपको पहले से ही वचन मालूम है। It's like God's word is a lamp to my feet. इस प्रकार से जैसे हमने पहले देखा, वचन हमारे पांव के लिए एक दीप है। So it's already showing you don't go in that direction. और पहले से ही हमें बता रहा है परमेश्वर का वचन की वो रास्ता न चुनो। So this is how the written word of God leads us. और इस प्रकार से हमें परमेश्वर का लिखित वचन अगुवाई करता है। So whatever questions we have, the first thing we have to do is go and research the scriptures. और हमारे पास जो वचन पहले से ही दिया हुआ है, हमारा काम ये है कि उसको ज्यादा से ज्यादा खोज कर पढ़ाई करें। What does the Bible say about making money? और परमेश्वर का वचन क्या कहता है पैसे के बारे में? What does the Bible say about saving money? परमेश्वर का वचन पैसे को बचाने के बारे में क्या कहता है? So these are all practical questions. Is this correct? Is that wrong? What does the word say? ये सब जो है एक सामान्य एक हमारे जीवन में हर एक दिन में आने वाली सवाल है और इसको खोज इस वचन से हम कर सकते हैं। So this is the first
and best way to be led by God. Know His word. और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके द्वारा हम अगुवाई प्राप्त कर सकते हैं, वो है परमेश्वर का वचन। So when we know the word of God, we may not even have to ask. हमें जब परमेश्वर का वचन के बारे में पहले से ज्ञान है तो हमें पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। You remember we said the renewed mind will help us make the right decision. हमें याद होगा कि हमने सुना था, हमने पढ़ा था कि हमारे दिमाग का नया होना, परमेश्वर के वचन में नया होना हमें परमेश्वर में बढ़ाएगा। Okay? So many times we may make big and small decisions simply based on our knowledge of God's word. हम जो है कई बार छोटे या बड़े निर्णय परमेश्वर के वचन पर आश्रित होकर हम लेते हैं। Okay? So this is how God's word guides us. इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन करता है। The written word of God is what we call logos in the Greek. और परमेश्वर का जो लिखित वचन है जिसको यूनानी भाषा में हम लोगोस बोलते हैं। And we've already seen in 2 Timothy 3:16 and 17 that the written word of God will guide us. और दूसरा तिमुथियुस 3 का 16 और 17 में पहले ही हमने देखा कि परमेश्वर का वचन जो है हमारा मार्गदर्शन करेगा। It's like a boundary. ये एक सीमा के समान है। It will tell you that okay, within this you can make a choice. और वो वचन हमें ज्ञान देगा या समझ देगा कि इस सीमा या इस दायरे के अंदर चुनाव करना है। And it will be safe, it will be prosperous. और ये सुरक्षित रीति है और ये भला रीति है। Now, when we talk about the word, there is another way God uses the word to speak to us. और जब हम वचन के बारे में बातचीत करते हैं और एक तरीका है जो वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, And that is called Rhema, और उसको कहते हैं परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य, or the quickened word of God. अति शीघ्रता के साथ हमारे पास आने वाली परमेश्वर का वचन। So, the written word is already there and we understand that. और परमेश्वर का वचन जो पहले से लिखा हुआ है वो हम समझते हैं। But the quickened word means that sometimes God will highlight some scriptures or passages to talk to us. अति शीघ्र में हमारे पास पहुंचने वाली वचन का मतलब ये है कि कभी कभी जो है परमेश्वर का वचन हमारे पास वो सुनाई में आता है। God will just bring it to your notice. अचानक से हमारे ध्यान में वो वचन को लेकर परमेश्वर आ जाएगा। Okay, so I remember the first time somebody asked me to speak. मैं याद करती हूँ कि मेरे से जब किसी ने पहली बार बातचीत करने के लिए बोला, And that too in a church service. So it was basically like sermon. Can you do this Sunday sermon? और वो जो है कलीसिया में था, उनने मेरे से बोला कि आज का प्रचार जो है आपको करना है। And at that point I was really like, am I hearing it correct? और तब मैंने सोचा ये जो बोला जा रहा है मुझसे मैं सही सुन रही हूँ कि नहीं। So I went back home and first thing I did is I took the Bible. और मैं घर जाने के बाद पहला कार्य ये किया कि मैंने अपने परमेश्वर के वचन को उठाया And I started to pray. और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। God, I've never done this before. मैंने कभी भी पहले ऐसा कोई कार्य नहीं किया Is है। this from you? क्या ये आपके पास से है? Are you speaking to me? क्या आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं? No, I'm so young. Will the people listen to me if I speak? मैं इतनी जवान हूँ, क्या लोग मैं बोलने वाली वचनों को सुनेंगे? So at that time, God gave me 2 scriptures. और उस समय परमेश्वर ने मुझे वचन में से 2 भाग दिया। I had already, scripture in general, right? और सामान्य रीति से हमें वचन के बारे में ज्ञान है। But on that day, 2 scriptures
it sort of jumped at me. और उस दिन प्रत्येक दिन जब मैंने प्रार्थना किया, ऐसा हुआ कि प्रत्येक तरीके से दो वचन अचानक से मुझसे बातचीत करने You know, लगा। the passage where God tells Jeremiah, don't think that you are young and don't be afraid by looking at their faces. और यिर्मयाह से जैसे परमेश्वर बोलता है कि उनके चेहरों को देखकर, तो उन लोगों को देखकर तू भयभीत ना हो जाना। And in the book of Luke, you know, at a time when people are persecuted, Jesus says, don't be afraid, I will give you the words. और परमेश्वर के किताब में लूका समाचार में जैसे लिखा हुआ है, जब तुम्हारे विरोध में लोग आते हैं, तुम्हें पीड़ना देते हैं, तुम्हारा विरोध करते हैं, तब भयभीत ना हो, I will give you the words. और मैं तुम्हें उचित वचन तेरे मुंह में दूंगा। So I was reading something else and I had not noticed that verse that says, you know, don't be afraid, I will give you the words. और मैं और कुछ पढ़ रही थी, लेकिन वो पहले कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस समय जो है अचानक से मेरे मन में आया कि मैं तुम्हें अपना वचन दूंगा। So the moment I read that verse, it said, don't be afraid, I will give you the words. I was 100% sure that it is God who has given this opportunity. और जब मैंने वो वचन को ध्यान से पढ़ा कि मैं तुम्हें मेरे वचन को दूंगा करके, तब मेरे को समझ में आया ये जो मौका मुझे मिला है सच में प्रभु परमेश्वर ने दिया है। So in this way, sometimes what God will do is the same verses that we have been reading many times, suddenly that word will come to us in a powerful way. और कभी कभी क्या होता है कि जो वचन जो हम पढ़ते रहते हैं, कभी कभी वो बड़े ही सामर्थ के साथ हमारे पास आता है। So we must be open to that. और हमें जो है उसको समझने के लिए हमारा दिमाग को खोलना है। And most of the time it is when we are reading the Bible. और कई बार ऐसा होता है जब हम परमेश्वर की वचन को पढ़ रहे हों। Okay, so I remember one girl, she was interested in commerce or, you know, business studies, and she also liked to be a chef, cooking. और एक लड़की के बारे में मैंने सुना कि एक लड़की थी जिसको बिजनेस जो कॉमर्स का पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसी समय उसको खाना पकाने का जो सीख होता है शेफ बनने के लिए, उसका भी बहुत इच्छा था। And her parents told her, it is your choice. और उनके माता पिता ने बोला कि तेरी इच्छा है, You can do whatever you like to do. और तेरे को जो कुछ इच्छा है वो कर सकती है। And she was so confused. लेकिन वो बहुत संकोच में थी। And she was praying, she was reading the Bible. और वो प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगी। One day when she read the verse that says, to do the will of God is my food and my water. जब उसने एक दिन पढ़ा और ये वचन के सामने आए कि मेरा कार्य करना तुम्हारे लिए आहार और पानी पीने के समान है। So Jesus said to do the will of God is my food and my water. परमेश्वर यीशु मसीह अपने शिष्यों से बोलता है कि मेरे काम को करना, मेरे हित को करना तुम्हारे लिए आहार है। So when she read the food and water, it's as if, you know, all along God was telling her, it's okay, you can do the chef job. It was like a confirmation. और उसने जब आहार और पीने के पानी के बारे में पढ़ा तो उसको ऐसा दर्शित हुआ कि परमेश्वर एक अगुवाई दे रहा है कि वो शेफ बनने के, नहीं तो शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो बावर्ची बनने का कोर्स ले लें। Okay, so it was very boldly she took up this course of studying to be a chef. और ये बावर्ची बनने का जो शिक्षा के लिए उसने पढ़ने का निर्णय ले लिया। Now, whenever we are making decisions, we already said that we need confirmation. और जब हम निर्णय लेते हैं, हमने पहले भी देखा कि हमें परमेश्वर के पास से एक दृढ़ उत्तर की जरूरत है। See, there are some decisions which are small, meaning they will not impact us so heavily. कुछ निर्णय होते हैं जो छोटे निर्णय होते हैं, जो हमारे जीवन में प्रत्येक तरीके का एक छाप नहीं छोड़ता है। For example, उदाहरण रीति all से of us woke up this morning
आज सुबह के समय हम उठे and then we decided you want to wear red, you want to wear green, you want to wear white. और आपने अचानक से निर्णय लिया कि आज के दिन जो मैं कपड़ा पहनूंगा, ये पहनूंगी लाल कलर का पहनूंगी, नीला कलर के पहनूंगी, या सफेद कलर का या हरा कलर का। It doesn't matter, right? It won't make a big difference if you wore some other color. और कोई भी कलर पहनने से, कोई भी रंग पहनने से उसमें प्रत्येकता कुछ भी नहीं है, Because the impact is small. क्योंकि उसका जो छाप है वो कम रीति से है। But when it comes to taking a job, moving a city, right? These are big decisions. और लेकिन जब हम एक नया काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी निर्णय है। So when it comes to big decisions, and even you can train yourself for small decisions, get a confirmation. और जब छोटा बड़ा डिसीजन, हम बड़ा निर्णय लेते हैं, हम परमेश्वर के पास से उसका पूर्ण रूप से उत्तर प्राप्त कर लें। Can somebody read from 2 Corinthians chapter 13 and verse 1? कोई पढ़ सकता है दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय 7 verse 7, 13 verse 1. 13वां अध्याय उसका एक पहला पद, दूसरा कुरिन्थियों 13 का 1। जिनको भी मिल गया है जल्दी से पढ़ लें ऊंची आवाज में। This is the first time, this is the third time I am coming to you. The box of 2 or 3 witnesses, every word shall be recognized. Yes, very good. Thank you, brother. कोई हिंदी में भी पढ़ दे। कोई बुराई न नहीं करे देख पड़े। 2 Corinthians दूसरा 13 कुरिन्थियों 13 verse का 1. 1। मैं तुम्हारे पास आता हूँ, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। Okay, very good. So in English it says, by the mouth of 2 or 3 witnesses, every word shall be established. 2 या 3 गवाहों के द्वारा मुख से हर एक बात को ठहराई जाएगी। So this quote is from Deuteronomy 19 and verse 15. निर्गमन 19 का 19 वर्स 19 and verse 15. 19 का 15 में से लिया गया है। Okay, so remember 2 Corinthians chapter 13 and verse 1. आपने मन में याद रखें कि दूसरा कुरिन्थियों 13 का 1। By the word of 2 or 3 witnesses, every word will be established. तेरे उनके दो या 3 लोगों के गवाही के द्वारा हर एक क्या था 2 या 3 गवाहों के मुख से हर एक बात को ठहराई जाएगी। Okay, so this means that we need at least 2 उसका or 3 witnesses or confirmation to go ahead with something. और उसका मतलब ये है कि किसी बात के लिए या किसी बड़े निर्णय के विषय में आगे बढ़ने के लिए 2 या 3 व्यक्तियों की गवाही की जरूरत है। So when it comes to receiving God's guidance, we need at least 2 confirmations. जब हमें परमेश्वर के कार्यों के में विषय में Yeah, we need at least 2 confirmations to move ahead with any instruction. और किसी भी जो परमेश्वर के कार्य है उसमें आगे बढ़ने के लिए 2 लोगों की गवाही की जरूरत पड़ती है। So it need not be 2 people, but it has to be 2 confirmations. 2 लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है, लेकिन 2 लोगों के द्वारा कही गई बातों में वो दृढ़ होता है। So when we say confirmations, one can be from the word of God. जब हम उसमें सही रीति से वो दृढ़ है या ठहराई गई है जब बोलते हैं, एक हो सकता है परमेश्वर के वचन से, Or the second one can be from a prophetic word. और दूसरा हो सकता है भविष्यवाणी के द्वारा, The third one can be from an inner knowing.
हो सकता है कि मन के अंदर या अपने आत्मा के अंदर से आई हुई प्रेरणा के द्वारा। So, what I'm trying to say is that for big decisions, look for at least 2 confirmations, and it can come from anywhere. और बड़े निर्णय के लिए हम कम से कम 2 लोगों की गवाही, 2 बातों की गवाही लेना जरूरी है। वो हो सकता है वचन में से आए या किसी व्यक्ति के द्वारा से आए। So, we just now said that God can speak through the logos. और हमने देखा कि परमेश्वर जो है वचन में से बातचीत कर सकता है। God can speak through the rhema. और परमेश्वर शीघ्र उत्पन्न होने वाली वचन में से हमसे बातचीत कर सकता The है। rhema can come when we are studying the word of God. ये परमेश्वर का जो शीघ्र आने वाली वचन है, वो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हों तब हम में से बातचीत कर सकता है। Or the rhema can come when the word of God is being preached. और हो सकता है कि ये शीघ्र आने वाली वचन जो है कोई अगर प्रचार कर रहा हो तब भी आ सकता है। So I remember in the early days when I used to come to APC. और मैं याद कर रही हूँ कि आरंभ के समय पर जब मैं एपीसी चर्च में आती थी, Every Sunday when pastor used to preach, I would think, how does he know that this is exactly what I need? और मैं हमेशा ये सोचती थी कि कैसे पासवान को मालूम है कि ये वचन जो है मेरे को जरूरत था। So God was speaking through the preaching from the pulpit. और परमेश्वर जो है उस स्टेज में से जो प्रचार किए जाने व्यक्ति के द्वारा बातचीत कर रहा था। So when we go with faith, God speaks to us. और जब विश्वास के साथ जाते हैं परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। Maybe we are listening to a sermon or a podcast or something. We are just listening to the word. हो सकता है हम किसी के द्वारा बोला गया वचनों को रिकॉर्ड किया हो, वचनों को सुन रहे हो या किसी भी रीति से किसी वचन को सुन रहे हो। Even through that, God can speak. उसके द्वारा भी परमेश्वर जो है हमसे बातचीत कर सकता है। So, in this way, we can get confirmations. और इस प्रकार से हमें जो है ठहराया जा सकता है कि ये परमेश्वर से है। Okay. So, are you all understanding? We need at least 2 confirmations. Yes. हमें 2 गवाही की जरूरत है। And it can come from anywhere. और वो परमेश्वर के वचन या कहीं से भी आ सकता है। Now, when we also speak about the word of God, और हम जब परमेश्वर के वचन को हम बोलते हैं, we have another witness, that is the voice of our conscience. और हमारे समझ की वाणी भी वहां पर होता है। There are scriptures, but I'm not going to read it. यहाँ पे वचन है इसके बारे में, लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ। From page 32. इंग्लिश में 32, where we are told that God has given us a spirit. जहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर ने हमें एक आत्मा दिया है। And that spirit, or we also call it the conscience, our conscience speaks to us. और हमारा विवेक जो है हमसे बातचीत करता है। And even our conscience can direct us and say, this is good or something is bad. और हमारा विवेक जो है हमें अगवा कर सकता है कि ये सही है या गलत है। So we must listen to our conscience. और हमें करना क्या है, हमारे विवेक की सुनना है। Okay. For example, you have people like Shadrach, Meshach and Abednego. जैसे उदाहरण में ले सकते हैं 3 जवान लड़के जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो के नाम से थे। At that time, everyone else was worshipping other gods. उस समय जो है सारे लोग, जो उस प्रांत के सारे लोग जो है वो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे। But when it came to the king's instruction, they said, no, we cannot do what you are saying. We have to worship our God. और जब राजा ने कहा कि मैं जो कह रहा हूं तुम्हें करना है और मैं जो कह रहा हूं उसकी आराधना करना या पूजा करना है, तो उनने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते, हम हमारे परमेश्वर की आराधना करेंगे। So their conscience
did not allow them to do what was wrong. और उनके विवेक ने अनुमति नहीं दिया गलत चीजों को करने के लिए। So listen to your conscience. आपके विवेक की सुने। As long as we keep a renewed mind, our conscience will speak the right things to us. जब तक हम परमेश्वर में हमारे दिमाग को, सोच विचार को नया बनाते रहेंगे, नयापन लेके आएंगे, तो हमारा विवेक जो है हमसे सही रीति से बातचीत करेगा। So if anyone is asking us to do something that our conscience does not agree with, then listen to the conscience. और जब हमसे कोई बोले ऐसा करना है, वैसा करना है, अगर मेरा विवेक उसमें नहीं समर्थन करता है तो उसको नहीं सुनना। So even our conscience can guide us to some extent. कुछ दायरे तक जो है, कुछ सीमा तक मेरा विवेक भी मेरी सहायता कर सकता है। So now there are two warnings as we are talking about God's word leading us. और हमारे परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई करने के संबंध में दो चेतावनियां हैं। One is that we should not wrongly interpret the word of God. पहला है कि हमें गलत रीति से परमेश्वर के वचन को समझना नहीं है। Okay, so it is true that we can make the Bible say whatever we want. हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमें जो कुछ कहना है वो परमेश्वर के वचन को भी उसी प्रकार से कर सकते हैं। So imagine an unjust boss or employer who says, the Bible says, you should obey your master. So you do what I'm telling you to do. और अगर एक बॉस है, आपका मैनेजर है, वो बोलेगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मालिकों की बात मानो, and he's asking you to do something illegal. और आपको गलत चीजों को करने को बोलता है। How can you do it? Because it's illegal. क्योंकि वो गलत है तो हम कैसे कर सकते हैं? But the manager is saying the word of God says you must obey your master. लेकिन मैनेजर ऐसा बोलता है कि आपका वचन तो कहता है कि अपने बड़े कर्मचारी का, प्रमुख कर्मचारी का बातें मानना है। So you see, we can take the Bible, we can take the scriptures and we can wrongly divide it. और देखिए यहाँ पे ये उदाहरण से ये समझाने की कोशिश है कि हम वचन को लेकर गलत रीति से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। We know that the pure word of God will build us up. और हम जानते हैं परमेश्वर का पवित्र वचन जो है हमें बनाएगा, तैयार करेगा। But the wrongly divided word of God can hurt us. लेकिन परमेश्वर का गलत रीति से समझा हुआ वचन जो है हमें हानि पहुंचा सकता है। So right interpretation is very important. और सही रीति से परमेश्वर के वचन को समझना जरूरी है। Okay, so when we are saying let the word of God lead you, also make sure that it has been rightly divided or interpreted. और जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन मुझे अगुवाई करना है, तो ये ध्यान देना है कि परमेश्वर का वचन जो है सही रीति से हम उसको समझे। And also we can misuse scripture. और हम कई बार क्या कर सकते हैं कि वचन को गलत रीति से इस्तेमाल में ला सकते हैं। No, maybe we want to buy something expensive. हो सकता है कि बहुत ही महंगा कुछ चीज हम खरीदना चाहते हैं। And we are asking, is it God's will or is it not His will? हम ये पूछते हैं कि क्या ये परमेश्वर का इच्छा है, ये हित है। And whenever we look at verses, we can find places where it is saying, yes, you go ahead, you buy it. और कभी कभी हम जब वचन पढ़ते हैं तो हमें ऐसे अगुवाई मिलता है कि हाँ जाके खरीद लो। Okay, so people tend to do this. They'll read into the lines and convince themselves that the Bible is giving me a go ahead. और कभी कभी हम पढ़ते हैं, हम वचन को पढ़ लेते हैं और ये समझ जाते हैं कि परमेश्वर जो है मुझे अगुवाई दे रहा है इस कार्यों को करने के लिए। Okay, maybe another better example that the young people will understand. और एक जवान लोग समझ जाएं वैसा एक उचित उदाहरण ऐसा है। When it comes to finding a life partner.
एक अपने जीवन के साथी को चुनने के समय, sometimes we make up our minds that this is the person. और कभी कभी हम लोग ये निर्णय ले लेते हैं हमारे दिमाग से कि ये व्यक्ति जो है सही है मेरे And लिए, every verse we read, it's as if God is saying, yes, yes, correct, this is the person for you. और हर एक वर्ड, हर एक वचन जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं वो हमें सही लगने लगता है कि हाँ यही व्यक्ति है मेरे लिए। You see the name of that boy or girl and everything, Matthew, Mark, Luke, everywhere. और मत्ती, लूक और मार्क, मरकुस में हर जगह में उस व्यक्ति का नाम भी दिखना शुरू हो जाता है। Whether God is really speaking or not, that is question mark. और क्या सही मायने से प्रभु हमसे बातचीत कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो है, Because it is in our mind and in our hearts, we are seeing it in scripture. और हमारे दिमाग में और हमारे सोच विचार में है, इस कारण से हम जो है वचन में से भी देख रहे हैं। So this is a misuse of scripture actually. और ये जो है परमेश्वर के वचन का गलत इस्तेमाल कहा जाता है। So these are the warnings. ये है चेतावनियां, Rightly interpret the word और सही मायने से परमेश्वर के वचन को समझें and don't misuse the word और परमेश्वर के वचन को गलत रीति से इस्तेमाल ना करें, to do what you think should be done. और जो चीज आप करना चाहते हैं उसके लिए। Okay? So this is about the way the word of God leads us. ये है परमेश्वर किस रीति से मुझे और आपको अगुवाई देता है, Through the word. परमेश्वर के वचन के द्वारा। Now, in the coming 2 sessions, we will look at other ways in which God speaks to us. और आने वाले आगे के 2 सेशंस जो है उसमें देखेंगे हम परमेश्वर के फ्रॉम द Other ways. और अलग आगे जाके हम देखेंगे और अनेकों रीति जिस प्रकार से परमेश्वर हमें अगुवाई या मार्गदर्शन करता है। Okay? So right now, let's take a break आइए हम एक ब्रेक लेंगे, and we will come back at 3:05. 3-5 को हम लोग आगे आएंगे।